Hello everyone, welcome. Look, in previous lecture we have done up to the Peninsular Plateau. We have studied three relief features, namely the Himalayan mountain system, and second one is the northern plain and the Peninsular Plateau. Now in onward this lecture we are going to discuss two more relief features, that is Indian desert and the coastal plain. So let's begin with the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 mm per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy seasons. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Lumni is the only large river in this region. This Indian desert that lies toward the Aravalli Hills. The western parts of the Indian country, especially from the bordering from Gujarat to the Rajasthan and up to Delhi lies the Aravalli Hills, and on these margins of the Aravalli Hills lies the Indian desert. दिस इज़ अ वेरी लो रिसीविंग रेनफॉल एरिया, मतलब वहाँ पर बरसात जो है बहुत ही कम होती है 150 mm, और वहाँ पर नदियाँ खास कुछ नहीं है. कुछ नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम्स अपीयर होती हैं जब बरसात होती हैं, लेकिन एज यू नो द टेम्परेचर इज ऑफ एरिड क्लाइमेट वहाँ पर है, नॉट इज लुक लाइक having a much amount of water. सो जो स्ट्रीम्स अपीयर होती हैं एनुअल रेनफॉल की वजह से वो डिसअपीयर हो जाती हैं कुछ समय के बाद. एंड लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर दैट फ्लो अमंग दिस रीजन. You know the region of Indian desert, and especially this desert is be called as a Thar desert. Okay. सो दिस अब यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा, चूंकि सूखा है और वहाँ पर डेजर्ट है, सन ड्यून्स है, तो अच्छा वेजिटेशन भी नहीं होगा, अच्छी वेजिटेशन कर्स भी नहीं होगी. ये एक फिगर है जिससे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इंडियन डेजर्ट है. हाउ द वुमेन्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर फॉर द सर्च ऑफ वाटर. जो वहाँ की औरतें होती हैं वह काफ़ी लंबी दूरियां तय करती हैं वाटर के लिए. मटका अपने देखो सिर पर अपने मटका लिए हुए औरतें जा रही हैं. Birchens crescent shaped dunes over large areas, but longitudinal dunes become, there are dunes means जो सैंड होती है उनके कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिसको हम लोग ड्यून्स कहते हैं, और उसमें जो क्रिसेंट शेप्ड का ड्यून होता है उसको हम लोग लोकली जो है बर्चन्स कहते हैं. एंड मोर ऑफ द dunes whichever but longitudinal dunes becomes more prominent near the Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of birchens. And when you visit the boundary area of Rajasthan, near the Pakistan and Indo-Pakistan border, you will find these groups of birches in large quantity. If you go to the bordering area of Jaisalmer. And the next is the coastal plains. The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea of the west and Bay of Bengal on the east. जो हमारा coastal area है, आप देखेंगे कि जो हमारा इंडिया का मैप है वह जब हम लोग नॉर्थ टू साउथ आते हैं तो स्ट्रिपर हो जाता है. एंड जो स्ट्रिपिंग एरिया है, इस साइड हमारा अरेबियन सी है एंड इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है. इंडियन ओशियन का जो कवर हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में लाई करता है उसको हम लोग अरेबियन सी का पार्ट बोलते हैं, और जो ईस्ट साइड में लाई करता है उसको हम लोग बे ऑफ बंगाल बोलते हैं. तो जो कुछ स्ट्रिप्स हैं इसी एरियाज के स्ट्रिप्स जो हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करते हैं, that type of streets we called as the coastal plains. The western ghats sandwiched between the western ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of three sections. In the western side of this coastal plain, it consists of the three sections. That is, first the northern part of the coast. The northern most part of this coast is known as the Konkan, जिसको हम लोग मुंबई गोवा का रीजन बोलते हैं. एंड द सेंट्रल इज कॉल्ड एज द कन्नड़ प्लेन.
while the southern stretch is refers to as the Malabar coast. जो वेस्टर्न साइड का स्ट्रेच है, इसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इस स्ट्रेच का, इस कोस्टल स्ट्रेच का, उसको हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं. एंड जो मुंबई और गोवा का रीजन है, दैट डिफाइन इज एज द फिजिकल बाउंड्री. उसकी कोंकण कोस्ट की जो फिजिकल बाउंड्री है वो मुंबई और गोवा का रीजन डिसाइड करता है. और उसके जो बाद वाला सेंट्रल स्ट्रेच है उसको हम लोग कन्नड़ प्लेन कहते हैं. और जो साउदर्न मोस्ट स्ट्रेच है वेस्टर्न घाट्स के तरफ, अरेबियन सी के तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मलाबार कोस्ट कहते हैं. द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. In the northern part it is referred to as the northern Sirkar, while the southern part it is known as the Coromandel coast. Look, the area that lies to the east of this stretch, this coastal stretch, we along the Bay of Bengal, the we referred is as the Bay of Bengal side coastal plain, and the northernmost part of it is the known as northern Sirkar, and southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. And the such as east flowing rivers from the southern India, such as Mahanadi and Godavari and the Krishna and Kaveri rivers form the जब नदियां समुद्र में मिलने से पहले, ड्रेन होने से पहले, वो डेल्टा बनाती हैं. एंड दे फॉर्म्ड ह्यूज डेल्टा अमंग दिस कोस्ट, अमंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल के साइड जो कोस्ट है, वहाँ पर जो महानदी और गोदावरी और कृष्णा रिवर हैं, कावेरी रिवर है, ये सब जो है डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं. देखो हमने कोस्टल प्लेन में दो कोस्ट पढ़ा. एक ऐसा कोस्ट जो वेस्टर्न साइड में लाई करता है अरेबियन सी में, उसमें हमने देखा कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इस कोस्ट का, उसको हमने कोंकण कोस्ट कहा. फिर उसके बाद हमने कन्नड़ प्लेन कहा जो सेंट्रल पार्ट है. और फिर उसके बाद जो साउदर्न मोस्ट स्ट्रेच है उसकी, उसको हमने कहा मालाबार कोस्ट. And the next that is the coast that lies along the Bay of Bengal, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग नॉर्दर्न सिरकार कहें, और दैट लाइज टू द साउदर्न मोस्ट पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. एंड रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, these rivers forms the delta near this coast that lies in the west of Bengal. Lake Chilka is our important feature along the eastern coast, and Lake Chilka is an important feature of this eastern coast. We have studied two coast, that is western coast and eastern coast. उसमें हमने पढ़ा कोंकण कोस्ट, फिर उसके बाद हमने कन्नड़ प्लेन पढ़े, फिर मालाबार कोस्ट पढ़ा, और हमने फिर ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में ये पढ़ा, और ईस्टर्न कोस्ट में हमने पढ़ा नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट. एंड व्हाई दिस लेक चिल्का इज फेमस फॉर, बिकॉज चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, विच लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. जो उड़ीसा राज्य में एक सबसे बड़ा जो है खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा में स्थित है. ठीक ना. अब अगला जो फीचर है वो आइलैंड है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट फीचर. You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two groups of island. Can you identify this island group? देखो, जो ज्योग्राफी कुछ एक्सटेंट तक पढ़ा है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ क्लास 7th 8, वो जानते हो कि हमारे इंडिया में दो टाइप के आइलैंड पाए जाते हैं. जो वेस्टर्न साइड में लाई करता है उसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं, और जो ईस्टर्न साइड कोस्ट के लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो दिस टू टाइप्स ऑफ जो मेन लैंड हमारी बाउंड्री है, उसके अलावा दो प्रकार के हमारे दो ग्रुप्स में आइलैंड भी पाए जाते हैं इंडिया में. लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. एक ऐसा आइलैंड आप लोकेट कीजिए जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का है, जो कि मलबार कोस्ट केरला के नियर लाई करता है. ठीक ना. एंड द स्मॉल कोरल आइलैंड से जो मिलकर बना हुआ है. अर्लियर दे वर नोन एज लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनीद्वीप. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer, and Karavati Island is the administrative headquarter of the Lakshadweep. And the capital of the Lakshadweep is Karavati.
This land group has a great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is uninhabited as a bird sanctuary. Look, the island which lies in the Arabian Sea, means which lies in the western coast, near the western coast, we referred is the Lakshadweep Island. पहले इन आइलैंड को हम लोग अलग अलग नाम से जानते थे, लकाद्वीप, मिनिकॉय, नमिन द्वीप, लेकिन 1973 में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन आसान करने के लिए इसको एक कॉमन नाम दिया लक्षद्वीप, और इसका हेडक्वार्टर हमने बना दिया कारावती। इसका जो स्प्रेड है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इसमें एक पिट्टी आइलैंड है जहां पर इनहेबिटेड नहीं है, तो इसको उसको क्या लोग बना दिए हैं, बर्ड सेंचुरी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको बर्ड सेंचुरी बना दी है, ठीक ना। अब कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आर बेसिकली पॉलीलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which live in colonies. You know some short types of microscopic organism जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं और जो झुंड में रहते हैं, live in colonies. They flourish in shallow and mud-free and warm waters. They secrete calcium carbonate, and these corals secrete a chemical component known as calcium carbonate. The coral secretion and their skeleton form coral deposits in the form of reefs, and they are mainly of three kinds. Basically barrier reef, fringing reef, and altos. If you go to this, the southern very part of the India, in Kerala and all region, near these you will find some types of reefs. These reefs are formed by the, the skeletons remains of this coral, or the secretions that they secrete in the form of calcium carbonate. इसकी वजह से रीफ बनती है। और सबसे बड़ी जो रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि एक कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। एटॉल्स आर सर्कुलर्स और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स, एंड एटॉल्स जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, या इनको हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स कहते हैं। जो हॉर्स का शू होता है, जो घोड़े होते हैं, उनके नीचे जो है एक मैग्नेटिक टाइप का स्ट्रक्चर लगाया जाता है, ताकि वो जब चलें तो उस पर जो है इनको लोड ना हो, इनके पैरों में दर्द ना हो, इसलिए उसको जो है घोड़े को पहले से ही लगा दिया जाता है लोहे का चीज। तो उसी को, उस शेप के जो रीफ्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एटॉल्स कहते हैं। Now you see the elongated chain of island located in Bay of Bengal extending from north to south. They are Andaman and Nicobar Island. And हमने पहले ही बोला था कि जो group of island Bay of Bengal के side lie करते हैं, near to the Bay of Bengal, they were known as the Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size as compared to the Lakshadweep, एंड दे आर इन मेनी नंबर्स बट इन स्केटर्ड फॉर्म। जगह जगह पर वो उस जो है बे ऑफ बंगाल के किनारे जगह जगह पर फैले हुए हैं। और द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ, एंड वी डिवाइड दिस इंटायर ग्रुप, दिस इंटायर आइलैंड ग्रुप लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अंडमान जो कि नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आइलैंड है, उसको हम लोग अंडमान आइलैंड कहते हैं, और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको निकोबार कहते हैं। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. These islands groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. इस आइलैंड में बिलीव किया जाता है कि कुछ important mountains हैं जो कि submerged हो गए हैं, इलेवेटेड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, और ये हमारे कंट्री के लिए फिजिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर्म करता है। और इस आइलैंड पे अच्छी खासी जो फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। चूंकि ये इक्वेटर के नियर लाई करता है, तो ये इक्वेटोरियल जो टेम्परेचर होता है वो एक्सपीरियंस कर पाता है। इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन फाउंड on barren island in Andaman and Nicobar island group of island, and India have only one active volcano which lies in the barren island of Andaman and Nicobar island. उस पे कोई रहता नहीं है, नो इनहेबिटेंट इज प्रेजेंट, और उसी पे हमारा एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, जो कि बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, उसमें है। अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resource. अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक डिटेल्ड अकाउंट पढ़ा
हम फिजियोग्राफिक पैटर्न, जो इंडिया में फिजियोग्राफिक पैटर्न है या जो रीजन है, ये अलग अलग जो रीजन है वहाँ पर किस प्रकार की फिजियोग्राफी है उसको हमने पढ़ा कि ये जो फिजियोग्राफी, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोग्राफी है, वो इंडिया को एक रिच और ब्यूटीफुल नेचुरल कंट्री बनाती हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, हमने पढ़ा कि जो माउंटेन्स हैं उससे कुछ जो पेरिनियल रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, सच एज इंडस एंड गंगा, ब्रह्मपुत्रा। द नॉर्दर्न प्लेस में क्या होता है, हमको देखा कि कैसे फर्टाइल लैंड है, दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेट्यू ने हमें देखा कि प्लेट्यूज, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है उसमें कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। और फिर उसी तरीके से हमने देखा कि जो हमारा आइलैंड है और जो हमारा कोस्टल एरियाज है वो पोर्ट एक्टिविटीज जो होती हैं, पोर्ट एंड फिशिंग एक्टिविटीज जो हमारी शिप्स हार्बर होती हैं, तो पोर्ट्स पे ही तो होती हैं। तो ये हमारे इंडिया के जो इतने रिलीफ फीचर्स हैं वो इंडिया को फिजियोग्राफिकली कितनी रिच कंट्री और इमेंस कंट्री बनाते हैं, ये आपको देखने को मिला। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर टू एज, उसको क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। Mountain ranges in eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। द ऐसी माउंटेन रेंजेस जो ईस्टर्न पार्ट, जो हिमालयन की ईस्टर्न पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने सीरियसली इसको नहीं पढ़ा है। तो एक बारी कोशिश कीजिए कि आप लेक्चर्स को देख लीजिए। मैंने इसके पहले 2 लेक्चर्स करा दिए हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे, ये लास्ट लेक्चर है। और फिर अगर कोशिश कीजिए आपको तब भी ना समझ में आए तो एक बारी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने से बुक की इस चैप्टर की रीडिंग करें, तब आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। देखो, टीचर्स चाहे कितना भी पढ़ा दें, लेकिन जब तक बच्चा अपने से नहीं पढ़ता है, सेल्फ स्टडी नहीं करता है, ही कैन नॉट बी अ टॉपर, ही कैन नॉट बी अ कंपटीटर। सो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी साथ में करना पड़ेगा। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, सॉरी एक मिनट, दिस माउस इज वेरी, लुक, हमने एमसीक्यू कर रहा था, इसमें हमने 2 एमसीक्यू किए थे। और अगला है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्स टू एज, देखो जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है जो गोवा के साउथ में है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। कन्नड़ प्लेन कहते हैं, सेंट्रल प्लेन यही है ना, तो साउथ में ही लाई करेगा गोवा के, और इसको हम लोग कोंकण प्लेन कहते हैं। और हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स में कौन सा है, अन्नाई मुड़ी, कंचनजंगा, खासी और महेंद्रगिरी। That is Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats. So these all were the MCQs that you should attempt with yourself. And if you have any questions you can comment in the comment section, or you have any suggestion you can pin in the comment section. If you have any doubt you can also ask there, I will answer there. I hope you, if you like the video, please share it and subscribe the channel for real update and up to date update of this channel. Okay, thank you everyone.